Welcome to Unacademy. In this session, we will talk about the BIBO stability, जो कि टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों के बीच में क्या लिंक है। तो ये कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन है गाइस, और इस सेशन में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि किस तरीके से BIBO स्टेबिलिटी जो है वो कंट्रोल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो ध्यान से देखेंगे। इससे पहले का जो सेशन हुआ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे मैंने साइनसॉइडल इनपुट ऑफ LTI सिस्टम बताया था, और आज का ये दूसरा सेशन है। तो गाइस ये दोनों सेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक जो हमारा है वो है BIBO स्टेबिलिटी इन नथिंग बट माई टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। करेक्ट? सो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन पे BIBO स्टेबिलिटी क्या होती है, ये चीज़ें हम लोग अब देखेंगे। इज इट क्लियर? तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय माई सेल्फ. ओके, माई नेम इज Pankaj Singh. Okay, I have cleared GATE 4 times, in which 2 times my rank is under 100. I have mentored around 1 lakh plus student in 300 plus batches, and I was associated with the ACE Academy, where I have taught 6 years there. I have total 11 years of teaching experience. Okay, and the subject I take is the signal system, control system, and EDC. So these are the subject that I am taking. Okay, so you may join Unacademy in 2 ways. One is in free way and other is in paid way. Let me first introduce what is the benefit of taking the Unacademy subscription. See, Unacademy subscription, okay? Unacademy subscription, let me first, okay? Okay, with the Unacademy subscription, you will get a live class, okay? And doubt solving sessions, and the batches are conducted in English and Hindi. From one subscription, guys, you will get a access on RIB, and along with that you have access on crash course. So these are the very important thing that you will get from Unacademy subscription, which are not possible in a free, whether it is a special class or in a YouTube class. These are the very important benefits that you have to take care of. Okay, especially the weekly test, where you can monitor your performance through nothing but a test connected in Unacademy. Suppose if you want to personalize your preparation in different manner, then the Iconic subscription is for you. In Iconic, you will get a personalized coaching, study planner, study booster session, personalized test analysis, and along with that you have a preparatory study material. So all these are available, means all the plus benefits are there. Along with that you have Iconic subscription. तो ये आप बिल्कुल आप Unacademy ज्वाइन कर सकते हैं. आप Unacademy अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, then you must have a code, and the code only valid is Pankaj11. So ये कोड लगाने का पर्पस ये है कि that I will guide you in 6 and 7 subjects in your nothing but my complete Unacademy. ऐसा नहीं है कि ये कोड लगा के आप सिर्फ मेरा ही कोर्स देखोगे, आप किसी का भी कोर्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट द पॉइंट इज दैट आप मेरे गाइडेंस में आप प्रिपरेशन करोगे ना. बात करते हैं फ्री प्लेटफॉर्म की. तो फ्री प्लेटफॉर्म में मेरे स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हो. तो जैसे कि डेली 8:30 टू 10:30 के बीच में हर दिन, मंडे टू फ्राइडे हर दिन 8 टू 10:30 के बीच में अभी फिलहाल चल रहा है PYQ. गॉट इट? तो अभी आपका PYQ चल रहा है, जहाँ पे मैंने गेट के क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो करवा रहा हूँ. बिल्कुल आप इनको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं. इज इट क्लियर? इनको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ माय पॉइंट इज कि आप जितने भी लिंक हैं उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो. ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है कि Unacademy प्लस यूट्यूब लेक्चर्स और रिकॉर्डेड वीडियोज़ में क्या अंतर है. देखो, रिकॉर्डेड वीडियोज़ में आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, केवल लेक्चर. तो जितने भी आपके GD PD और ये सब के लेक्चर्स होते हैं उन पर कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है. यूट्यूब लेक्चर्स में आपको लाइव और रिकॉर्डेड कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स आप मिलता है, पर सपोर्ट फिर भी अगर आपको पर्सनलाइज में सपोर्ट चाहिए तो देखिए सर, इतने सारे फायदे हैं आपके Unacademy प्लस के. तो Unacademy प्लस एक आपको नॉमिनल कॉस्ट में कई सारे विंग्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के ही आप अपना मोबाइल खोलिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए. करेक्ट? रिकॉर्डेड कंटेंट के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, प्रीवियस ईयर हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए थे, जहाँ पे मैंने सिग्नल सिस्टम का लेक्चर रिकॉर्ड किया था. सर ने भी बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे, अंकित सर ने, विशाल सोनी सर ने, कामेश सर ने, सब में. तो आप बिल्कुल जाके जो है वो लेक्चर्स को आप देख सकते हैं. गॉट इट? और ये नए बैचेस जो कि स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, एंड सो ऑन.
और कई सारे बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हुए। अनअकैडमी कॉम्बैट आज हो गया, नेक्स्ट कॉम्बैट के लिए आप वेट करिएगा प्लीज। इसके बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जो हैं वो अनअकैडमी में आप लोगों को मिलती हैं। गॉट इट। और ये देखो गाइस, ये फीस है। ओके, तो अगर मैं फीस की बात करूं तो आप देखो सर, एक नॉमिनल कॉस्ट में आपको फीस जो है वो आपको मिल जाएंगी। गॉट इट। ये नॉमिनल कॉस्ट में आपको फीस आपको मिलेंगी। अब देखो 12 मंथ के लिए भी है, 18 मंथ के लिए भी है, 24 मंथ के लिए, तो आप अपने स्टडी को ईजिली जो है वो प्लान कर सकते हैं। सर अगर पर मंथ देखें तो 2269 पर मंथ आपको पड़ता है 12 मंथ का 1925। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे 1650 रुपए में गाइस सबसे नॉमिनल कॉस्ट में आपको प्रिपरेशन जो है वो करने का मौका मिलता है। और अगर आप और ज़्यादा पर्सनलाइज करना चाहते हैं 24 मंथ का, तो और ज़्यादा पर्सनलाइज वे में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आप देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि 2250 रुपए में पर मंथ, 2250 रुपए पर मंथ में आप प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। इसलिए और सबसे बड़ी बात ये है कि नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है जहां पे आप कर सकते हो। बस आपको जो कोड लगाना है वो आपको कोड लगाना है पंकज11। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो BIBO स्टेबिलिटी इन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय BIBO स्टेबिलिटी। करेक्ट। तो देखो ध्यान से, मान लो कि मैं कह दूं कि मेरे पास एक सिस्टम है। ओके, मान लो मेरे पास एक सिस्टम है कुछ इस टाइप से, और जहां पे ये मेरे पास एक इनपुट है, जहां पे ये एक इनपुट है x ऑफ t, और यहां पे आपका आउटपुट है y ऑफ t। ठीक है, और ये सिस्टम है मेरा। तो देखो जरा, एक सिस्टम BIBO स्टेबल तब तक हो सकता है जब तक कि बाउंडेड इनपुट आपको बाउंडेड आउटपुट दे। बाउंडेड इनपुट आपको बाउंडेड आउटपुट दे। इसका बाउंडेड का मतलब क्या है कि अगर मेरा एक सिग्नल डिफाइन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू b या -b के बीच में लाई करना चाहिए, जहां पे b खुद भी लेस देन इन्फिनिटिव है, जहां पे b जो है वो आपका लेस देन इन्फिनिटिव है। तो अगर इनपुट ये है तो आउटपुट भी इसी नेचर का है, तो सिस्टम जो होगा वो BIBO स्टेबल होगा। इसलिए तो अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास इनपुट आउटपुट गिवन है, लेट्स से yt इज इक्वल टू, मान लो एग्जाम्पल से मैं समझता हूं मैं, yt इज इक्वल टू लेट्स से यहां पे है x²t। तो अगर मैं इनपुट xt को बाउंडेड रखूंगा, तो किसी का स्क्वायर हमेशा बाउंडेड ही होता है, तो ये सिस्टम हमेशा स्टेबल होगा। गॉट इट। ये सिस्टम जो होगा वो हमेशा स्टेबल होगा। इसलिए और भी आप कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि yt इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर b देखो, yt इज इक्वल टू xt माइनस ऑफ 3। अगर आप किसी इनपुट को शिफ्ट कर रहे हो तो जो सिस्टम आउटपुट और इनपुट का जो रिलेशनशिप है वो शिफ्टिंग से कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये सिस्टम अभी भी स्टेबल है। लेकिन अगर मैं एक काउंटर एग्जांपल देखूं, जैसे कि मेरे पास है मान लो yt इज इक्वल टू लेट्स से -∞t x टाउ डी टाउ। अब बहुत ध्यान देखना फ्रेंड्स, बहुत ध्यान देखना। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास मान लो xt की जगह पे मान लो ut है, xt की जगह पे ut है, तो आपको भी पता है कि ut का इंटीग्रेशन करने से ये रैम बन जाएगा। तो yt मेरा क्या बन जाएगा इस केस में, yt मेरा इस केस में क्या बन जाएगा, rt। yt मेरा क्या बन जाएगा इस केस में, rt। तो अगर आपने इनपुट दिया रैम स्टेप, तो आउटपुट आपको मिल जाएगा रैम। तो जो कि स्टेप तो बाउंडेड था, देखो स्टेप का क्या होता है, यही होता है, और रैम्प जो है वो अनबाउंडेड है ना। तो बाउंडेड दिया लेकिन फिर भी आपको अनबाउंडेड मिल रहा है, यानी कि सिस्टम जो है वो आपका कैसा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है। सिस्टम आपका कैसा है, अनस्टेबल है। तो ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि yt इज इक्वल टू लेट्स से d/dt ऑफ x ऑफ t, ये भी एक अनस्टेबल सिस्टम है ना। xt की जगह पे अगर मैं ut ही दे दूं तो आपको डेल्टा t मिल जाएगा। तो ये एक अनस्टेबल सिस्टम है। d/dt ऑफ ut कैसा है, d/dt xt की जगह पे अगर ये दोगे तो आपका जो yt होगा वो डेल्टा t बनेगा, जो कि अनबाउंडेड है। इसीलिए ये सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल है ना। ये भी कैसा आपका था, अनस्टेबल सिस्टम था। ये भी आपका कैसा था, अनस्टेबल सिस्टम था। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये आपका स्टेबल सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल सिस्टम क्या हो सकता है। और एग्जांपल आप ले सकते हो, लेट्स से अगर मैं आपसे कहूं, आप बताइए yt इज इक्वल टू कॉस ऑफ xt। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं xt को बाउंडेड रखूंगा, तो कॉस तो हमेशा बाउंडेड ही रहता है, 1 और -1 के बीच में लाई करता है। तो दिस इज नथिंग बट माय ऑलवेज बाउंडेड। तो ये सिस्टम कैसा है, आपका स्टेबल सिस्टम है। ये सिस्टम आपका हमेशा स्टेबल होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स से yt इज इक्वल टू
ई टू द पावर एक्स टी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपका इनपुट बाउंडेड है और आउटपुट बाउंडेड है तो सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। सर यही चीज, यही सेम चीज, ये आपका हो गया मॉड्यूल 1, ये आपका हो गया मॉड्यूल 1। सर यही सेम चीज अगर सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स डिफाइन है, अगर सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स डिफाइन है तो उस कॉन्टेक्स्ट में कैसा होता है देखो, इफ सिस्टम इंपल्स रिस्पॉन्स इज डिफाइंड, मॉड्यूल 2, तो अगर सिस्टम का लेट्स से इंपल्स रिस्पॉन्स डिफाइन है, if impulse response is given, if impulse response is given, impulse response is given, तो आप ये कह सकते हो कि लेट्स से इंपल्स रिस्पॉन्स h ऑफ t गिवन है, तो सिस्टम स्टेबल कब होगा? फॉर स्टेबल सिस्टम, गॉट इट? फॉर स्टेबल सिस्टम सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी mod ht dt शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। यानी कि अगर आपका इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन है तो सिस्टम के स्टेबिलिटी की कंडीशन ये है, सिस्टम की स्टेबिलिटी की कंडीशन जो है वो ये, गॉट इट? तो इफ अ सिस्टम इंपल्स रिस्पॉन्स इज गिवन देन द स्टेबिलिटी कंडीशन इज दिस, स्टेबिलिटी कंडीशन इज दिस वन, स्टेबिलिटी कंडीशन जो होगी वो आपकी ये होगी। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपको कभी भी अगर लेट्स से impulse response given है then you must tell the stability condition with the help of the impulse response कि whether it is the absolutely integrable or not। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लो मेरे पास एक xt है जो कि है e to the power minus of 2t ut, सॉरी xt नहीं ht, मान लो मेरे पास, एग्जाम्पल देता हूं, a मान लो मेरा जो ht है वो है e टू द पावर माइनस ऑफ 2t ut। अब बहुत ध्यान देखना, अगर मैं ये कह दूं कि मेरा जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो e टू पावर माइनस 2t ut है जो कि ये है, इसको देखो सर, तो ये क्या होगा सर? कंडीशन देख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ 2t ut, ठीक है? तो ये लिमिट क्या हो जाएगा dt, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ 2t dt ut की वजह से, इसका मॉड। तो ये मॉड से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लेस देन, दिस इज नथिंग बट 1/2, है ना? तो 1/2 विच इज लेस देन इन्फिनिटी कहने का मतलब ये सिस्टम कैसा स्टेबल है, ये सिस्टम है स्टेबल। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जरा सर, अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखें इसका, अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखें, सेकंड एग्जाम्पल, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि yt मेरा है 1, सॉरी ht है मेरा 1, ठीक है? ht मेरा 1 है, तो आपको पता है कि 1 ये होता है। अगर आप इसका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड 1 dt करोगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये सिस्टम कैसा है आपका? अनस्टेबल है। ये सिस्टम कैसा है आपका? अनस्टेबल है। तो और भी एग्जांपल ले लीजिए, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। चलो सर, अगर मैं कह दूं e टू पावर माइनस ऑफ 40 u माइनस टी प्लस 2, ये सिस्टम कैसा है? मान लो ये है हमारा h3d, थर्ड एग्जांपल है, तो h3d ये कैसा एग्जांपल? अब देखो u माइनस टी प्लस 2 की लिमिट कहां से कहां तक होती है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, है ना? तो जब आप पुट करो, आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक मॉड e टू द पावर माइनस ऑफ 40 dt। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है गाइस, अगर आप माइनस इन्फिनिटी यहां पे पुट करोगे, माइनस इन्फिनिटी यहां पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? कमान इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन इटसेल्फ बिकम्स इन्फिनिटी, इट इज, इसीलिए ये अनस्टेबल सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम है। और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। मैं मान लो मैं इसकी बात करता हूं सर, e टू द पावर माइनस ऑफ 4 मॉड टी की बात करता हूं, h4t, ठीक है? h4t ये कैसा सिस्टम होगा बताओ सर? e टू द पावर माइनस ऑफ 4 मॉड टी कैसा होता है? e टू द पावर माइनस ऑफ 40 ut और प्लस e टू द पावर 40 u माइनस टी, है ना? अब आपको इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं, इसकी लिमिट देखो 0 से लेके इन्फिनिटी है, इसकी लिमिट देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 है ना? तो अब आप मुझे बताओ, जब आप 0 रखोगे तो क्या होगा? 1, इन्फिनिटी रखोगे तो मिलेगा 0, माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो मिलेगा 0, और 0 रखोगे तो 1 मिलेगा। कहने का मतलब 100% इसका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड e टू द पावर माइनस ऑफ 40 dt 4 mod t dt इज ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी, और सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा।
तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि स्टेबिलिटी का मॉड्यूल 2 क्या है, अगर इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन है तो ये सिस्टम स्टेबल तब होगा, ये सिस्टम इंपल्स स्टेबल तब होगा जब इसका मॉड एरिया अंडर द कर्व है वो हमेशा लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसका मॉड्यूल 3 बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। मॉड्यूल 3 सर यही दोनों कंडीशन कंबाइन फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये होती है कि इफ ऑल द पोल of HS is in left half of S plane, then system causality plus stability is guaranteed. और इसका जो बेस है ये कहां से आता है, गारंटेड। सर इसका जो बेस है ये कहां से आता है, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से आता है। तो अगर कोई सिस्टम को स्टेबल होना है, अगर कोई सिस्टम को आप ये कह रहे हो कि अगर कोई सिस्टम आपको स्टेबल होना है प्लस कॉजल होना है तो सारे के सारे पोल जो होने चाहिए लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे लाई करना चाहिए। सर आप जिन्होंने भी आरओसी पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे कि अगर कोई सिस्टम आपका स्टेबल है, अगर कोई सिस्टम आपका स्टेबल है तो वो जियोमेट्रिक एक्सिस को लाई करेगा, और अगर कोई सिस्टम कॉजल है तो उसकी जो आरओसी होगी वो राइट साइडेड होगी। तो कॉजल के लिए आरओसी राइट साइडेड होती है और स्टेबिलिटी के लिए जियोमेट्रिक एक्सिस को लाई करती है। तो दोनों कंडीशन को कंबाइन करिए तो सिस्टम अगर बीआईबीओ स्टेबल है तो सारे के सारे पोल आपके लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे होंगे। गॉट इट? तो जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक HS है, लेट्स से 1/s+2, जो कि इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म था HT = e⁻²t ut। गॉट इट? e⁻²t ut। तो आप देखो सर ध्यान से, सर ये इसका अगर आप पोल चेक करो तो पोल जो होगा वो -2 पे होगा, और चूंकि इसका पोल लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे है इसलिए ये सिस्टम कॉजल और स्टेबल होगा। तो ये देखो ये कॉजल भी है और स्टेबल भी है। कॉजलिटी कंडीशन क्या है यहाँ पे, सर ये टोटल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है इसलिए कॉजल है, और इसका एब्सोल्यूट एरिया इन द कर्व अभी मैंने बताया कि ये फाइनाइट है इसलिए ये भी स्टेबल है। तो कॉजलिटी और स्टेबिलिटी कंडीशन ये है कि सारे के सारे पोल लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे लाई करने चाहिए। लेकिन एक एग्जांपल देखो जरा, अगर मैं HT लेट्स से e⁻40ut कर दूं तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, चेक करना प्लीज, ये आएगा 1/s-4। और इस केस में चूंकि पोल जो है वो यहां पे है, राइट हाफ में है, तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा, ये कॉजल तो है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप देखिए, टाइम डोमेन में आप देखिए ये प्योरली कॉजल है और ये अनस्टेबल है। गॉट इट? अगर आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में टाइम डोमेन में चेक करना चाहते हो तो आप चेक करके देख लो कि -∞ मॉड e⁻40ut करोगे dt, तो ut से लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे e⁻40 dt करोगे तो आंसर जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये चीजें जो होगी वो अनस्टेबल हो जाएंगी। इज इट क्लियर? तो एक बात आप याद रखना, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सिस्टम मेरा जो है वो कॉजल और स्टेबल है तो सारे के सारे पोल कहां पे होने चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे होने चाहिए। ठीक है? तो जब भी कभी भी स्टेबिलिटी की बात आती है, ये बहुत ब्रॉड इश्यूज है, जब भी कभी भी स्टेबिलिटी की बात आती है तो हम ये कह देते हैं कि सिस्टम मेरा स्टेबल तब होगा जब सारे के सारे पोल जो होंगे वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे होंगे, प्रोवाइडेड कि वो कॉजल हो। अगर ये चीज आप एंटी कॉजल के लिए दोगे तो कंडीशंस उल्टी हो जाएगी। क्योंकि हम कंट्रोल सिस्टम में कॉजल सिस्टम पढ़ते हैं इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ कॉजल और स्टेबल के लिए सारे के सारे पोल कहां पे होने चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे होने चाहिए। इससे क्लियरिटी हो? तो ये कंडीशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंट्रोल सिस्टम की पहली लाइन ही यही बोलते हो कि सारा का सारा पोल हमें लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे करना है। तो नाइक्विस्ट के लिए भी आप डिजाइन करते हो, बोडे के लिए भी आप डिजाइन करते हो, कंट्रोल और कंपनसेटर्स आप डिजाइन करते हो, एंड सो ऑन। तो ये टूल्स आपको इनेबल्स करती हैं कि सारा का सारा पोल कहां हो, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे हो। तो ये तीनों जो है वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये तीनों आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट हैं और इनसे क्वेश्चंस जो है वो आपको हमेशा मिलता है। एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल स्टेबल का। आप देखिए ये क्या होता है, मार्जिनल स्टेबल क्या होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक HT है मान लो जो कि है UT,
अब आप देखोगे इसका आप टाइम डोमेन पे देखो तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और मॉड यूटी करोगे और dt करोगे तो ये पक्के से इन्फिनिटी आ जाएगा। आप टाइम डोमेन पे आप इसे आप स्ट्रेट अवे कह सकते हो कि ये अनस्टेबल सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन पे आप इसका अगर पोल देखो तो पोल इसका कहां पे है, जे ओमेगा एक्सिस पे है। अगर आपका पोल एक सिंपल ओरिजिन पे लाई करेगा तो आप ये कह सकते हो कि सिस्टम जो है वो आपका मार्जिनल स्टेबल है, क्योंकि मेरे पास अभी एक मार्जिन है, मेरे पास अभी एक मार्जिन है जिससे कि मेरा जो पोल है वो यहां लाई कर सकता है, वो यहां लाई कर सकता है। गॉट इट? तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल। बट किस लैंग्वेज में, कंट्रोल की लैंग्वेज में, याद रखना केवल और केवल कंट्रोल की लैंग्वेज है। सिग्नल सिस्टम की लैंग्वेज में तो ये अनस्टेबल सिस्टम है, सिग्नल सिस्टम की लैंग्वेज में ये अनस्टेबल सिस्टम है, एक बात आप समझ लेना। लेकिन मार्जिनल स्टेबल, ये मार्जिन का मतलब ये है कि हम इतना मार्जिन दे सकते हैं जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो कहां आ जाए, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे आ जाए। इज इट क्लियर? तो होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट एक बार आप देखिए तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। एक होता है BIBO स्टेबिलिटी, एक होती है BIBO मतलब बाउंडेड इनपुट देके बाउंडेड आउटपुट। ये हो गई आपकी मॉड्यूल 2 सिस्टम स्टेबिलिटी, ये हो गई सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और थर्ड हो गया आपका नथिंग बट माई स्टेबिलिटी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, स्टेबिलिटी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो मैंने ये पूरे लगभग 20 मिनट में सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश की है कि स्टेबिलिटी इन शॉर्ट हम कैसे जो है वो डिफाइन करते हैं। गॉट इट? और ये तीनों जो पॉइंट थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप मुझे अनअकैडमी पे यहां फॉलो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर इफ यू वांट टू गिव मी द मैसेज देन डेफिनेटली यू विल फॉलो मी इन ऑन अनअकैडमी। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप यहाँ पे आस्क कर सकते हो। और भी नॉन सब्जेक्टिव डाउट हो आप मुझे आप बिल्कुल दे सकते हो। मैं आपको गेट के जो इसका नोट्स होगा वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। इज इट क्लियर? और विद दिस थैंक यू वेरी मच। होप कि ये सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये जस्ट एक कैप्सूल कोर्स था जिसमें स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को मैंने जो है वो किया। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके में जो है वो क्वेश्चंस बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सेशन हमारा एक